Hello students, I am Mahinder Thomre, Assistant Professor of Department of Chemistry, GE Societies, NB Mehta, Science and Commerce College, Bordi. And I am teaching you a chemistry paper 3, that is the analytical chemistry of SYBSC, and this is our semester 4, and this is our part 1 lecture of unit 2, that is the instrumental method second. In last semester we have studied the instrumental methods 1, and in this semester we have to study instrumental methods 2. So let's see the instrumental methods 2 syllabus. So instrumental methods 2, unit 4, unit 4, the syllabus is instruments based on electrochemical properties of the analytes. In that one, first one is the potentiometry. And in potentiometry, we have to study first principle, then role of reference and indicator electrodes. That means what is the role of reference and indicator electrodes in potentiometry. Then application in neutralization reactions with reference to the titration of strong acid against strong base using a quinhydron electrode. So third topic is the in potentiometry application in neutralization reaction. Then fourth is the graphical methods for detection of endpoints. Then next one is the 2.2. After potentiometry, we have to study pH metry. So what is the principle of pH metry? Then types of pH meters. Then principles, constructions, working and care of combined glass electrodes. Then in pH metry, last topic is the application in titrimetry, that is strong acid, strong base, biological and environmental analysis. So application in titrimetry pH metry का इन बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस के हिसाब से. Next is the 2.3, that is the conductometry. So third one is the conductometry. In conductometry, we have to also study principle, then conductivity cell, its construction and care. Then application in neutralization titrimetry with respect to strong acid. First one is the strong acid, strong base. Then second one is the strong acid, weak base. Then strong base, weak acid. Then weak acid, weak base. So this is the conductometric syllabus. So last one is the advantages and limitations of conductometric titrations. So here we have now seeing all the syllabus. Then start our main topic, that is the instrumental method second. So in that we have to first study principle of potentiometry. In that basic concept of Voltaic cells. So पहले हमें क्या देखना है, सभी basic concepts. So what is the basic concept of Voltaic cells? A Voltaic cell, also known as a galvanic cell. Voltaic cell ही क्या बोलते हैं उसको, galvanic cell, is an electrochemical cell that uses a spontaneous redox reactions to produce electricity. So वोल्टेक सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और वो यूजेस क्या करता है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए यूज करते हैं. वो क्या करता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. So electricity will Voltaic cell produce. For this to take place, oxidation and reduction reaction must take place separately at anode and cathode respectively. So उसके लिए क्या करना चाहिए हमको, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ तो भी ऑक्सीडेशन होना चाहिए, वहां पर रिडक्शन होना चाहिए, और वो क्या सेपरेटली एनोड और कैथोड पर होंगी. एंड इलेक्ट्रॉन शुड फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम एनोड where they are produced to cathode where they are used. So वो क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स उसके फ्लो होनी चाहिए एक्सटर्नल सर्किट में से. जैसे कि एनोड, एनोड से कैथोड में, एनोड कौन सा होता है, जहां एनोड में वो प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में यूज होने चाहिए. So that is the basics of Voltaic cell. The Voltaic cell will thus consist of two electrode systems referred to as half cells.
सो होल्टेक सेल को ही क्या बोलते हैं फिर? half cell. A half cell consists of a metal wire strip, a rod, or a plate dipped in aqueous solution containing its own ions. So half cell contain क्या करते हैं? Metal wire strip, rod और plate dipped in aqueous solution containing its own ions. उसके खुद के आयंस होने चाहिए जो भी सॉल्यूशन में ले रहे हैं हम. That is the example of Holtec cell. A silver wire dipping in aqueous AgNO3 solution will will constitute a silver half cell. So silver wire अगर डिप किया हमने aqueous सिल्वर नाइट्रेट के साथ मतलब AgNO3 के साथ सॉल्यूशन के साथ, सो क्या करेगा? सिल्वर एज द हाफ सेल हम वर्किंग करेगा. So often the reactive species are present in a gaseous or liquid state. Then an insert metal like platinum is used for electrical contact. So the reactive species are present in gaseous or liquid state. Then insert metal like a platinum, जो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए हम उसमें प्लैटिनम यूज करेंगे. So platinum wire dipping in a solution containing Fe2 plus and Fe3 plus ions. So platinum wire कैसे? उसका एग्जाम्पल क्या है? platinum wire dipping in a solution containing Fe2 plus and Fe3 plus solution. So the electrode at which an oxidation reaction takes place is called the anode. So anode किसे बोलेंगे हम? जिस पर oxidation reaction होने वाला है. Whereas the electrode at which reduction occurs is called the cathodes. जिस पर रिएक्शन होगा वो क्या होगा? कैथोड. इन Holtec cell the anode is denoted with negative charge, the cathode with positive charge. So एनोड में क्या क्या करते हैं? डिनोट करते हैं निगेटिव चार्ज, क्या यानी एन कैथोड्स में with positive charge, and flow of electrons will be from anode to cathode through the wire which connects the two. So flow क्या होने वाला है? कैसे होने चाहिए? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू वायर, मतलब कोई एक वायर हो, प्लेटिनम वायर या कोई भी वायर हो, उसके साथ कनेक्ट होंगी. सो एट द कैथ एनोड कंसीडर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? सिल्वर लिया तो हमने सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन्स. सो सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन दैट इज द, ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए मतलब ऑक्सीडेशन. देन ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर मेटल will release Ag plus ions or build up positive charge in the Ag to Ag plus half cell, and at the cathode consider the reduction reaction. So cathode में क्या हम अभी reduction reaction कैसे लेंगे? H plus plus इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर H plus में, सो वो हाफ H2 गैस फॉर्मेशन होगा, मतलब वो यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए उसने. तो दैट इज द रिडक्शन ऑफ H plus ion leads to their removal in H2 to H plus. Half cell are built upon negative charge in this half cell. In order to counteract this effect, a salt bridge is used to connect the two half cells internally. So reduction of H plus ions क्या करेगा? H2 to H plus रिमूव करेगा, दे रिमूवल इन H2 to H plus. and हाफ सेल ये कैसे बिल्डअप? निगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा. सो इसको काउंटर अटैक करना पड़ेगा हमें, इस इफेक्ट को कम करना है हमें, तो सॉल्ट ब्रिज हम उसमें यूज करते हैं. और सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? कनेक्ट टू हाफ सेल्स इंटरनली, वो दो हाफ सेल को कनेक्ट करेगा. बट व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज? सो in your practical exam you also you can see the salt bridge. So salt bridge क्या है? A salt bridge is a U-tube filled with a saturated solution of soluble salt like KNO3, KCl और NH4NO3. सो यू सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? यू फील्ड, मतलब यू टाइप का, यू साइज का फील्ड होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, जैसे KNO3 KCl या NH4NO3 से, एंड इज इंट्रोड्यूस दैट वन एंड इज इन द बीकर कंटेनिंग Ag प्लस आयंस. उसका एक एंड क्या है? हम Ag प्लस आयंस में डालेंगे, एंड अदर बीकर कंटेनिंग H प्लस आयन, दूसरे H प्लस आयंस के बीकर में डालेंगे.
इफ द इलेक्ट्रोलाइट इज KNO3, अगर उसमें हमने ये इलेक्ट्रोलाइट KNO3 लिया, मतलब हमने यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज में ये तीनों सॉल्यूशन लिए, उसमें से हमने अगर ये KNO3 लिया, सो KNO3 द निगेटिवली चार्ज NO3 माइनस, मतलब ये द निगेटिवली चार्ज NO3 माइनस विल फ्लो आउट ऑफ one end of U2 to balance positive charge on the Ag plus. सो NO3 KNO3 और सिल्वर का अगर हमने लिया है तो KNO3 उसमें डाला तो क्या होता है, NO3 माइनस फ्लो करेगा एक एंड से पॉजिटिव चार्ज जहां पर होगा Ag प्लस आयंस का, Ag plus ions created at anode and positively charged K plus ions will flow out of the other end of the 2 to replace a H plus ion. So क्या होगा, K plus क्या करेगा, NO3 माइनस तो Ag plus के पास जाएगा बैलेंस करने के लिए, वैसे ही K plus क्या होगा, फ्लो क्या कहा होगा H plus में, हमने H plus में एक सॉल्ट ब्रिज का एक एंड डाला है और एक एंड KNO3 की सॉल्यूशन में. So ions consumed in the H plus ions consumed in the cathode compartment. Thus salt bridge helps to also complete the electric circuit. So इसके वजह से salt bridge का हम यूज करते हैं एज अ complete to complete the electric circuit. सर्किट के यूज पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए एज अ हम salt bridge यूज करते हैं. So now that is the salt bridge. And what is salt bridge? Here I am explaining. In practicals, you also you can see the salt bridge. So next is the cell potential. So what is the cell potential? The cell potential for a voltaic cell is the potential of the cell to do work on its surroundings by driving an electric current through a wire. So cell potential क्या है? Is the cell पोटेंशियल ऑफ द सेल टू डू वर्क, जो भी पोटेंशियल ऑफ सेल का है टू डू वर्क, मतलब कोई भी वर्क करने के लिए ऑन इट्स सराउंडिंग में जो वर्क करे, जो उसका पोटेंशियल है, जो सराउंड वर्क करने के लिए सराउंडिंग पर कोई ड्राइविंग फोर्स पर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर, सराउंडिंग बाय ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर. So by definition, 1 joule of energy produced when 1 coulomb of electrical charge is transported across a potential of 1 volt. So अगर 1 joule of energy produce करनी है हमको, 1 joule of energy, so उसको 1 coulomb इलेक्ट्रिकल चार्ज हमें ट्रांसपोर्ट करना लगेगा उसको. तो क्या करना पड़ेगा, अक्रॉस अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट में 1 कूलम हमें इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमें 1 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगा. दैट इज द सेल पोटेंशियल. द पोटेंशियल ऑफ गिवन वोल्टेज सेल डिपेंड्स ऑन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसिस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. तो ये पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा, वोल्टेज सेल का. डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसिस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. उस कॉन्सेंट्रेशन में कितने स्पेसिस का प्रेजेंट है उसमें, मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन में स्पेसिस प्रेजेंट है सेल टू डू अ वर्क ऑन सेल पोटेंशियल. देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन. पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन में पार्शियल प्रेशर कितना इन्वॉल्व है. देन टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन टेक प्लेस. देन टेम्परेचर भी पर भी डिपेंड करता है जहां पर रिएक्शन होने वाली उसके. द सेल पोटेंशियल्स measured under a standard conditions are represented by symbol E0. So सेल पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे E0 and represent the strength of the driving force behind the chemical reaction. The overall cell potential can be represented as E cell is equal to E oxidation plus E reduction, that is the 1, equation 1. Same as it is, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं E cell is equal to E anode plus E cathode, that is the second equation. So oxidation कहाँ होगा, एनोड पर, रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पर. So हमने ऐसे ही जस्ट सेम ही लिखा है, और में जस्ट E ऑक्सीडेशन की जगह पर E एनोड. So this is the cell potential, that is the
potential of the cell to do work on its surrounding. So line notation for Voltaic cell. So line notation for Voltaic cell means हमें रिएक्शन लिखनी कैसे है, उसके नोटेशंस कैसे, वो हमें देखना है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है. तो Voltaic cell can be described by line notation used on the following conventions. So हमने एक रिएक्शन लिया है यहाँ पर, जिंक माइनस जिंक प्लस टू प्लस देन 1.0 मोलर, देन डबल लाइंस कॉपर 2 प्लस एक्वियस, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1.0 मोलर, देन कॉपर प्लस, दैट इज द डैनियल सेल. सो यहाँ पर क्या हुआ, ये जिंक माइनस टू जिंक 2 प्लस क्या हो रहा है, मतलब एनोड, ये है आपका रिप्रेजेंट करेगा एनोड. देन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, ये कॉपर 2+2 कॉपर प्लस हो रहा है, मतलब कैथोड पर हो रहा है ये. तो द लाइन नोटेशन फॉर द एनोड दैट इज ऑक्सीडेशन. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, -2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर +2 डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इज रिटर्न, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. द लाइन नोटेशन फॉर द एनोड ऑक्सीडेशन इज रिटर्न बिफोर द लाइन नोटेशन फॉर द कैथोड, इट इज रिडक्शन. सो कैथोड रिडक्शन के पहले हमको ये ऑक्सीडेशन लिखना है, मतलब कैथोड एनोड पहले लिखना है, उसके बाद में हमें कैथोड लिखना है. सो रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, पहले हमें ऑक्सीडेशन दिखाना है यहाँ पर फर्स्ट में, देन यहाँ पर हमें कैथोड में रिडक्शन दिखाना है, वो सेकेंड में. मतलब within a half cell the reactants are listed before the products. So half cell में क्या है, reactants क्या है, listed before the products, मतलब क्या है, reactants पहले आने चाहिए, उसके बाद में हमें product लिखना है. Then third one is a single vertical line indicates a change in a state or a phase. So यहाँ पर सिंगल वर्टिकल लाइन लिया है हमने, देखा सब, यहाँ पर एक बार देख लो, ये जो लाइन लिया है हमने, ये या तो यहाँ पर भी लिया है ये जो लाइन. सो ये सिंगल वर्टिकल लाइन क्या डोनेट करती है, चेंज इन अ स्टेट और अ फेज. स्टेट कौन सी, सॉलिड लिक्विड कोई भी चेंज हो सकती है. सो उस पर, उसके लिए हम क्या करते हैं, वन लाइन सिंगल वर्टिकल लाइन यूज करते हैं. अ डबल वर्टिकल लाइन इज यूज टू इंडिकेट द फंक्शन बिटवीन द हाफ सेल एंड यूज ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज. सो डबल वर्टिकल लाइन किसके लिए यूज करते हैं हम, ये वाले डबल लाइन वर्टिकल लाइन, मतलब ये डबल वर्टिकल लाइन फंक्शन बिटवीन द हाफ सेल एंड यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज. मतलब हमने इसमें अगर सॉल्ट ब्रिज यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें डबल लाइन लिखना है, एज अ रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है हाफ सेल का, डबल लाइन लिखकर दोनों में. Next, fifth one is the concentration of aqueous solution are written in a parenthesis after the symbol for the ion or a molecule. So concentration किस में लिखना है, parenthesis में. So parenthesis is the, क्या होता है parenthesis, मतलब ब्रैकेट में लिखना है. parenthesis मतलब ये, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखिए 1 मोलर 1 मोलर, ऐसे अपने parenthesis मतलब ब्रैकेट में लिखना है. आफ्टर द सिंबल ऑफ फॉर द आयन और मॉलिक्यूल. सो सिंबल के बाद आयन और मॉलिक्यूल के, मतलब जिंक 2 प्लस के और कॉपर 2 प्लस के बाद में लिखा है. अ कॉमा इज यूज्ड व्हेन अ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व्स मोर देन वन स्पीसीज. इनके बीच में अगर और भी हमें एक दो लिखने हैं यहाँ पर, मतलब कॉपर 2 प्लस 1 मोलर, देन यहाँ पर कॉमा लगाकर दूसरा फिर से लिखना है. तो हमें क्या करना है, कॉमा देना है, इज यूज व्हेन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व्स मोर देन वन स्पीसीज, मतलब जिंक के साथ और भी कोई होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉमा कर फिर से आप डबल लाइन के पहले कॉमा करके यहाँ पर ऐसे कॉमा कर दूसरा भी लिख सकते हो, कोई भी सोल्यू स्पीसीज. So this is the sixth one, and now seventh one, the polarity is written on the top left and right hand corners. So polarity मतलब पॉजिटिव है, निगेटिव चार्जेस ये जो भी है वो कहाँ पर लिखने हैं,
टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट कॉर्नर। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने कहा लिखा है टॉप लेफ्ट पर, ये जो है निगेटिव साइन, सो ये हमने टॉप लेफ्ट पर लिख कर किया, और यहाँ पर हमने टॉप राइट पर, ये यहाँ पर कॉपर के राइट पर। So this is the line notation or the representation how to voltaic cell is represent of, and we have given a reaction of Daniell cells. So now everyone understand that the line notation for voltaic cell. So electrons flow from the anode to cathode in a voltaic cell. So electrons कैसे flow होने वाले anode to cathode in voltaic cell में हमने पहले ही देखा है. From the cell notation written, equation 1 and 2 can be written as, हमने पहले जो इक्वेशन लिखा है ई सेल का, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, वो कैसे हम सेल नोटेशन में लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई एल ऑक्सीडेशन प्लस ई आर रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसे लिखा था लेफ्ट एंड राइट, वैसे यहां पर क्या कर रहेंगे आप, ई सेल इज इक्वल टू माइनस ई एल रिडक्शन प्लस ई आर रिडक्शन। मतलब हमने यहाँ पर क्या रिप्लेस किया है, सिर्फ ऑक्सीडेशन का रिडक्शन किया है, बट ईएल को माइनस किया है, मतलब उल्टा होकर वही आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या और लिखा है, क्योंकि ये और ये सेम ही आएगा, बस यहाँ पर निगेटिव किया है, इसलिए वहां पर दोनों भी रिडक्शन रिडक्शन लिए हमने। सो सेल नोटेशन कैसे करेंगे हम, ई सेल इज इक्वल टू ई एल ऑक्सीडेशन प्लस ई आर रिडक्शन, और ई सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल राइट माइनस लेफ्ट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और में सिंस कन्वेंशनली ओनली रिडक्शन पोटेंशियल आर यूज, सो हमें कन्वेंशनली क्या रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करते हैं, इसलिए हमने ऐसे ये ऐसे लिखा है, रिडक्शन ही दोनों पर। इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स ई सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल जीरो, दोनों भी राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड हम करेंगे ई जीरो का। So that is the all about cell potential. So thank you students. Here we have completed our first lecture of semester 2. Thank you.